رہا ہے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے ان ایزنگ ٹورڈز اے لاک ڈاؤن. حکومت سندھ کا ذمہ داری ہے, ہم آپ کو سنبھالیں گے, ہم آپ تک کھانا پہنچائیں گے, ریشنز پہنچائیں گے. پاکستان میں کورونا وائرس کے بڑھتے وار اور 2 اموات. صورتحال کے پیش نظر بلاول بھٹو کا ملک میں لاک ڈاؤن کا مطالبہ. صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا. واضح کیا کہ لاک ڈاؤن کی صورت میں سندھ حکومت راشن گھروں تک پہنچائے گی. کورونا وائرس ملک میں آج مزید 78 کیسز رپورٹ, تعداد 380 ہو گئی. سندھ میں سب سے زیادہ کیسز 213 مریضوں کی تصدیق. پنجاب میں کیسز کی تعداد 78 تک جا پہنچی. بلوچستان میں 45 کیسز رپورٹ. خیبر پختونخوا میں 23 افراد وائرس کا شکار. 2 اموات کے بعد پشاور اور مردان کی یونین کونسلز میں لاک ڈاؤن. کراچی میں کورونا وائرس کے 65 کیسز. مقامی طور پر 43 افراد میں وائرس منتقل ہوا. صورتحال کے پیش نظر ایکسپو سینٹر کراچی کو 10,000 بستروں کا اسپتال بنانے کا فیصلہ. کراچی سمیت سندھ بھر میں جزوی لاک ڈاؤن کا دوسرا روز. سرکاری دفاتر اور انٹرسٹی بس سروس معطل. کورونا وائرس سے متعلق آگاہی کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے سول اور ملٹری قیادت کی پریس کانفرنس. معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا حکومت صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام اقدامات اٹھا رہی ہے. شہریوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی اپیل. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا وائرس سے نمٹنے کے لیے سول اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کڑے اقدامات. واگا بارڈر بند, نوٹیفیکیشن جاری. 22 مارچ سے 12 ٹرینیں بھی بند کرنے کا فیصلہ. ضرورت پڑی تو 1 اپریل سے مزید 20 ٹرینیں بند کی جا سکتی ہیں. رش کم کرنے کے لیے ریلوے حکام کا بڑا فیصلہ. مسافروں کو کینٹ اسٹیشن آنے کی ضرورت نہیں. ٹرینیں ڈرگ روڈ, ملیر اور لانڈی اسٹیشن پر بھی رکیں گی. خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ. ضلع انتظامیہ کی نااہلی. پشاور شہر کے انٹری پوائنٹس پر اسکریننگ کا نظام ہے, نہ کوئی دیگر انتظامات. حکام کے دعوے محض دعوے ہی رہ گئے. 177 ممالک کورونا وائرس کی لپیٹ میں. دنیا بھر میں 2,29,900 سے زائد کیسز رپورٹ. ہلاکتیں 9,300 سے تجاوز کر گئیں. اٹلی میں ہلاکتیں 3,000 کے قریب. ایران میں 1,284 اموات. چین کی صورتحال بہتر. ووہان میں آج کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. متحدہ عرب امارات میں غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی آئی. مستقل رہائشی ویزا رکھنے والے بھی 15 روز تک ریاست میں داخل نہیں ہو سکتے. اماراتی وزارت خارجہ کا اعلان. دبئی سے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے پی آئی اے اور ایئر بلو نے فیری فلائٹ شروع کر دی. شمالی وزیرستان میں شہید پاک فوج کے لیفٹیننٹ آغا مقدس علی خان کی نماز جنازہ شاد باغ لاہور میں ادا. فوجی اعزاز کے ساتھ مقامی قبرستان میں سپرد خاک. لیا میں حوالدار قمر ندیم کی تدفین. پاک فوج کے دستے نے شہید کو سلامی پیش کی اور قبر پر قومی پرچم لہرایا. کورونا کا پھیلاؤ اور لاک ڈاؤن کی افواہیں. کراچی میں اشیاء خوردنوش کی قلت. شہریوں نے بلا ضرورت خریداری شروع کر دی. مارکیٹ میں آٹا نایاب ہو گیا. چکی مالکان کا گندم کی قلت کا شکوہ. پیراگون ہاؤسنگ اسکینڈل کیس میں گرفتار خواجہ برادران کیمپ جیل لاہور سے رہا. استقبال کے لیے لیگی کارکنان کی بڑی تعداد امڑ آئی. دفعہ 144 کی خلاف ورزی. خواجہ صاحب کی نیب پر تنقید. کہا ادارے کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا. نیب اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اور میں ہوں کرن رسوی. بلٹن کا آغاز کریں گے پاکستان میں کورونا وائرس کے بڑھتے وار سے. ملک میں 2 افراد کی اموات اور بڑھتے کیسز کے پیش نظر بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن سمیت سخت فیصلے کرنے کا مطالبہ کر دیا. نیوز کانفرنس میں بلاول بھٹو نے کہا کہ صورتحال مزید خراب ہوئی تو ملک کو زیادہ معاشی نقصان ہوگا.
उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि लॉकडाउन की सूरत में सिंध हुकूमत राशन घरों तक पहुंचाएगी। अगर हम ठोस इक़दामात नहीं उठाते, जो कि मैं समझता हूँ थोड़ा देर है, अगर हम नहीं उठाते हैं तो ज़्यादा नुकसान होगा मईशत पे, ज़्यादा नुकसान होगा हमारे सेहत पे और हमारे ये जो मोर्टेलिटी रेट पे भी। इस वक्त जो हमारा एम होना चाहिए कि हम कन्विंस करें अपना वज़ीर आज़म को कि ये इक़दामात आप उठाए। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म को कोरोना से बचाव के लिए सख्त फैसले करने के लिए मनाने की कोशिश, विफाक से लॉकडाउन समेत सख्त फैसले करने का मुतालबा कर दिया। इस तरीके से ये बीमारी स्प्रेड हो रहा है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे इन ईजिंग टूवर्ड्स अ लॉकडाउन एंड इन प्रमोटिंग सेल्फ आइसोलेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम पर तनकीद से गुरेज किया और कहा अगर सख्त फैसले ना किए तो ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि हमारा कमजोरियां हैं, मैं जानता हूं कि हमारा मीशत में और हमारा हेल्थ सिस्टम में, लेकिन क्या करें, हम जैसे हैं वैसे भी हम मुकाबला करने को तैयार है और हमें मुकाबला करने पड़ेगा। इसके लिए हमें क़यादत की ज़रूरत है और हमारा इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान है, हमारा वफाकी हेल्थ मिनिस्टर इमरान खान साहब है, तो उस पर कोई तंकीद नहीं करूँगा, उससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो लीड करेगा इस मुश्किल वक्त में। बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध हुकूमत यौमिया उजरत दूर तबके के रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश करेगी। लॉकडाउन की सूरत में घरों पर राशन फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 381 हो गई। सिंध में कोरोना वायरस के 217 मरीजों की तस्दीक हो गई है। पंजाब में कोरोना के 78, बलूचिस्तान में 45 और खैबर पख्तूनख्वा में 24 अफराद कोरोना का शिकार बने हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 13 और इस्लामाबाद में 4 केसेस सामने आए। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा होने लगा। आज कोरोना के 78 मरीज सामने आए। कराची में 9, कोयटा और तफ्तान में 22, मुल्तान में 5, लाहौर और डीजी खान में 28, खैबर पख्तूनख्वा में 5 नए केसेस सामने आए हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि 80% अफराद पैनाडोल से ही सेहतयाब हो सकते हैं। हुकूमत पंजाब ने कोरोना के टेस्ट के लिए शौकत खानम को आधी किट्स दी हैं और आधी बाकी सूबे में बांट दी हैं। शौकत खानम के पास लेवल 3 का लैब है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम उनको अपनी आधी किट्स उनको दी हुई है, आधी हमने रखी हुई है। अगर 100 बंदे इन्फेक्ट हुए तो 80% पैनाडोल के साथ ही रिकवर कर लेंगे। उनको किसी किस्म की मजीद दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रहे अब तक पाकिस्तान में कोरोना से 2 हलाकतें हो चुकी हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर नागुज़ेर। कराची में मकामी तौर पर वायरस मुंतकली के 43 केसेस सामने आ गए। बाजारों में शहरी बगैर एहतियात के सब्जी और फलों की खरीदारी में मसरूफ हैं। कराची में सरकारी दफातर, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, बचत बाजार और तफरीही मकामात आज बंद रहे। सब्जी और फलों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। पैकेट भी बन सकते हैं सब्जी के, आप डिस्प्ले के लिए सब्जी अलग कर दें, पैकेट बना दें। इसको आधा किलो का चाहिए, उसको आधा किलो का पैकेट दे दें। जिसे 1 किलो सब्जी चाहिए उसे 1 किलो का पैकेट दे दें। ऑब्वियसली होना चाहिए। यहाँ सबके सीने भी नहीं पहने हुए हैं। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पहन लेते हैं, मास्क भी और दस्ताने भी बहरहाल यूज करते हैं। शहरी अशिया की खरीदारी के वक्त मुंह, नाक और हाथों को ढांप कर बाजार जाएं। मास्क लगाया हुआ है, अभी इससे ज्यादा क्या एहतियात करे। बाल बच्चों का पेट भी तो पालना है ना, काम पे भी तो आना है ना। बचाव से बेहतर एहतियात जरूरी है और सबके लिए चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। ये एहतियात करेंगे तो ताकि आगे फायदा है, लोगों को फायदा, अपने आप को फायदा। पूरी कौम को चाहिए कि मास्क लगाए ताकि बीमारियां ख़त्म हो। जरासीम वगैरह जो आते हैं मुंह के जरिए अंदर जाते हैं। ये तो अच्छी बात है, एहतियात करना चाहिए उनको, बल्कि सबको ही लगाना चाहिए मास्क। हिफाजती इक़दामात के तहत एक्सपो सेंटर कराची को मुतासरीन के लिए इलाज के लिए वक्फ कर दिया गया। एक्सपो सेंटर में 10,000 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बनाया जाएगा। कोरोना वायरस के बायस पेशावर और मर्दान के 2 इलाकों में लॉकडाउन कर दिया गया।
एलामिया के मुताबिक पेशावर की यूनियन काउंसिल सफेद ढेरी और मर्दान की यूनियन काउंसिल मंगा को करंटीना करार दे दिया गया है। सफेद ढेरी के तमाम दाखिली रास्ते हर किस्म की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद हैं। जिला इंतजामिया ने पूरे इलाके की स्क्रीनिंग का फैसला किया है। मर्दान में 4 सद्दा रोड पर किसी किस्म की गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं। कोरोना वायरस से जाबाग शख्स हंगू का रिहायशी और सफेद ढेरी में रिहाइश पजीर था, जबकि मर्दान में कोरोना से जाबाग शख्स का ताल्लुक यूनियन काउंसिल मंगा से था। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि मुसल्लह अफवाज अवाम की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मुश्तरका निगरानी जारी है। 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हैं। फेस मास्क और सैनिटाइजर बनाने का अमल भी जारी है। DGISPR ने कहा, जो शख्स भी किरदार अदा कर सकता है वो आगे बढ़े। अवाम का एतमाद पाक फौज का असासा है। मुसल्लह अफवाज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों के तनाज़ुर में सिविल इदारों के साथ मिलकर आवाम की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश और तमाम वसाइल मरूएकार ला रही है। तमाम एंट्री पॉइंट्स पर फौज और सिविल इदारे मुश्तरका निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान में कुल 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों की रोशनी में सिर्फ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद पर इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस हो रहे थे और इसमें भी फौज के एहलकार सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए तमाम जगहों पर मौजूद थे। 21 मार्च की सुबह से पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान एयरपोर्ट्स भी ऑपरेशनल होंगे। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, फेस मास्क और सैनिटाइजर्स बनाने के लिए भी पाकिस्तान फौज के ज़ेर एहतमाम साइंटिस्ट्स इस अमल में रिसर्च भी कर रहे हैं और इनको तैयार कर रहे हैं। हम सब ने मिलकर इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर इस हवाले से अपना अपना किरदार अदा करना है। अवाम का एतमाद अफवाज पाकिस्तान का असासा है। कोरोना वायरस के पेश नज़र पाक भारत सरहद वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। वजारत दाखिला की नोटिफिकेशन के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाघा बॉर्डर को 2 हफ्ते के लिए बंद किया गया है। मौजूदा सूरत हाल में वाघा बॉर्डर की बंदिश पाकिस्तान और भारत दोनों के मुफाद में है। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के सरहद वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। वजारत दाखिला की नोटिफिकेशन के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर वाघा बॉर्डर को 2 हफ्ते के लिए बंद किया गया है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने सिंध हुकूमत के कहने पर कोरोना वायरस बचाव के लिए 22 मार्च से 12 ट्रेनें बंद करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर रेलवे ने 1 अप्रैल से मजीद ट्रेनें मुअत्तल करने का इंदिया भी दिया। शेख रशीद ने रेलवे के पास कोरोना के असली टेस्ट की सलाहियत न होने का एतराफ़ भी किया। रेहान शेख मजीद बताएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि सिंध हुकूमत के मुतालबे पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए 12 ट्रेनें 22 मार्च से बंद कर रहे हैं। 25 मार्च को फिर मीटिंग होगी। जरूरत पड़ने पर 1 अप्रैल से मजीद ट्रेनें बंद की जा सकती हैं। पर 12 ट्रेनों को 22 तारीख से बंद करेंगे और अगर जरूरत पेश आई तो 25 को फिर बैठेंगे और मजीद 20 ट्रेनें जो हैं वो 1 तारीख को बंद कर दी जाएंगी। शेख रशीद ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिर्फ स्कैनिंग कोई हल नहीं। वजीर रेलवे ने ये इतराफ किया कि रेलवे के पास असली टेस्ट करवाने की सलाहियत नहीं है। इस्लामाबाद में स्कैनर लगे थे, सारे खराब हो गए। हमें जो आला मिला है वही सारा आला पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है और हमारा जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं वो PIA के आले भी देख ले और वहाँ के मुसाफिरों की तादाद भी देख लें और हमारे मुसाफिरों की। शेख रशीद का कहना था मुल्क लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहा। रेहान शेख, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब भर में कोरोना वायरस से बचाव के इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस टेस्ट के लिए 3 लेबॉर्ट्रीज को मुख्तस कर दिया गया है। सूबाई ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में कोरोना टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं, ताहम 2 प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज में कोरोना टेस्ट के लिए 8,000 से ज्यादा फीस वसूल की जा रही है। हुमा भट्ट रिपोर्ट करेंगी। वायरस फैला तो पंजाब हुकूमत ने इंतजामात शुरू किए। सूबे में 40 और लाहौर के मेयो सर्विसेज और PKLI में आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए गए, जहां मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जो हमारे पास सस्पेक्ट पेशेंट आते हैं उसको हम आइसोलेशन में रखते हैं, उसके टेस्ट भेजे जाते हैं। अगर कन्फर्म है उनको सेपरेट कर लिया जाता है, लेकिन आइसोलेशन के लिए सस्पेक्ट को अलग रखना लाजमी है। गैर किट के नहीं जा रहे, वार्डें खास तौर पर एलोकेट की हुई हैं, डेडिकेटेड साफ सुथरी वार्ड हैं। मरीजों की सहूलत के लिए सूबाई ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में मुफ्त, जबकि चुगताई लैब से 7,900 और शौकत खानम से 8,600 रुपए में टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट परेशान कर रहे हैं। कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये
فی الحال حکومت کوششیں کر رہی ہے کہ اس کی قیمت کو روک تھام کی جائے اور عوام کو سہولیات مؤثر کی جائیں. زیادہ ہیں چارجز لیکن اس کو کم ہو سکے اور اس کو حکومت پیچھے سبسڈائز کر سکے, دیٹس گڈ. ریڈ کریسنٹ عوام کو 500 روپے میں کورونا ٹیسٹ کی سہولت فراہم کرے گا. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اقدامات اور انتظامات کا سلسلہ تو جاری ہے, مگر ٹیسٹوں کی بڑھتی قیمت مریض پریشان کن ہے. مریض کہتے ہیں کہ حکومت قیمتوں کو کنٹرول کرے. کیمرہ مین ندیم نصیر کے ساتھ ہما بٹ, آج نیوز, لاہور. کورونا سے متاثر افراد کو طبی سہولت فراہم کرنے والے خود سہولیات سے محروم. پشاور کی ڈاکٹر برادری نے حکومت سے حفاظتی کٹس کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا. پشاور سے مزید بتائیں گے کامران علی. خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس سے 2 افراد کی ہلاکت کے بعد معاملات تشویشناک صورت اختیار کر گئے. حالات سے نمٹنے کے لیے ڈاکٹروں کو کیا سہولیات فراہم کی گئی ہے, آئیے ان سے جانتے ہیں.